Praise the Lord. Just a quick mic check. Can you hear me? Yes, okay. All right. Praise the Lord. First of all, I'd like to thank Pastor Philippos Matthew for this opportunity to speak the Word of God. और सबसे पहले मैं पास्टर फिलिपोस मैथ्यू का धन्यवाद करना चाहता हूं इस अवसर के लिए जो वचन से बांटने का मुझे दिया है। And as I always say, the most important duty today is not mine, but it will be Blessing Philip's job. और जैसे मैं कहता हूं कि अक्सर ऐसे सभाओं में कहता हूं कि मुझसे बढ़कर जो जिम्मेदारी होती है वो अनुवादक की होती है और इसलिए मैं उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। So I'd like to thank Blessing as well for his support in translating the Word of God. और इसलिए आज जो अनुवादक है उनका भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं उनके लिए भी कि उनकी सहायता के लिए जो अनुवाद में मिल रही है। I'd like to thank all the believers that are in this gathering, listening to the Word of God. God bless you all. God give you enough of wisdom and understanding to lead a life according to the Scriptures. और आज जितने भी परमेश्वर के दास और दासी इस सभा में जुड़े हैं हर एक के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं और प्रार्थना यही है कि हर एक को परमेश्वर अपनी मर्जी में और परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से हमारे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। All right, very quickly we will get into the Word of God because the time is very short and there are so many things that we need to cover and teach. और जल्दी मैं वचन की ओर आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत कुछ बातें मैं आपके सामने आज वचन से रखना चाहता हूं। I request you all to be very, very attentive and carefully keep your ears open, keep your eyes open. If you want to write down, and may the Holy Spirit guide you. और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप लोग ध्यानपूर्वक आज के वचन को सुने और अगर परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करता है आप लिख भी सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं और परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात करने पाए। As you all know, this is considered as the advertisement or how it was in the flyers and brochures is that it was expressed as a fasting prayer. और जैसे हमने पत्रिका में देखा था ये उपवास की प्रार्थनाएं चल रही है। So I decided to go in the scriptures through a practical route, and probably that will help you in supplementing your fasting. और आपकी उपवास की प्रार्थना में की सहायता के तौर पर मदद के तौर पर एक प्रायोगिक वचन मैं आज आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। Okay, the scriptures will be very familiar to you, but I would like to take you through a different route for you to understand the reasons why the scriptures are written the way it is. और वचन हम सबके लिए चिर परिचित वचन है, हमने कई बार इसमें से संदेशों को सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको अलग एक दिशा में लेकर जाना चाहता हूं इन्हीं वचन के जरिए और इसके जरिए परमेश्वर हमसे बात करेगा। All right, may the Lord help you all in this journey. और मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर हम सबकी सहायता इस यात्रा में करे। Very quickly, Romans chapter 8, we'll read from verses 5 through 8. और रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 5 से लेकर 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। What we'll do is we'll read this portion and then we will definitely cover portions which is after this, which is before this, and we'll try to get a full-fledged understanding, hopefully, in this small time that we have. और हम इन तीन आयतों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके पहले की बातों को, उसके बाद में जो आयतें लिखी है उसकी ओर भी अपने ध्यान को लगाएंगे और परमेश्वर की मदद से हम सब कुछ इसके अंदर समझने का प्रयास करेंगे इस अध्याय में जो लिखा है इस थोड़े से समय में। What should happen at the end of the meeting? इस सभा के अंत में क्या होना चाहिए? You should have gotten closer to the Lord. आप परमेश्वर के और करीब आने चाहिए। And you should have understood who He is so that you can live according to His will. और आप कौन है, परमेश्वर कौन है ये हम समझ जाएं ताकि उसकी मर्जी और उसकी योजना के मुताबिक हमारा जीवन हो जाए। Praise the Lord. Romans chapter 8 verse 5. This is how it starts. रोमियो 8वीं अध्याय उसके 5 से 8 में इस प्रकार लिखा है। For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। Verse 6. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. 6वीं आयत, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Verse 7. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. क्योंकि 7वीं आयत, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। And verse 8 is a kind of a very strong verse. It says, those who are in the flesh cannot
please God. और जो 8वीं आयत है वो जोर देकर ये बात कहती है कि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। Now, the thing is, these are very simple verses. These are not complicated in the face value. और आमतौर पर ऐसे ही पढ़कर हम जाएं तो शायद ये हमें इसके अंदर कुछ गहरा हमें नजर ना आए, साधारण सी आयतें हमें लगे। It's a simple thing that says, don't live according to the flesh, live according to the Spirit. अगर हम पढ़कर जाएं तो साधारण तौर पर समझ सकते हैं कि शरीर के आधार पर नहीं रहना है, आत्मा के अनुसार हमारा जीवन बिताना है। But the moment you put this verse in the context of Romans, that's where the entire complication and the reason for study starts. और लेकिन जब रोमियो की पत्री की पृष्ठभूमि में हम इस अध्याय को देखते हैं, इन आयतों को देखते हैं, तब वहां पर बातें और गहरी हो जाती है और गहराई की बातों को समझना जरूरी होता है। So it's very important, especially these portions are very deep. The book of Romans is a very deep book. It isn't a simple book, I will confess, but we have to understand the depth of Romans in order to understand these scriptures also in a true light. और जो रोमियो की पत्री है बहुत ही गहरी एक पत्री है, इसके अंदर गहराई की बातें बहुत कुछ लिखी हुई है और कई बार समझने में कुछ बातें शायद कठिन लगे, लेकिन इसकी गहराइयों में उतर कर जाना हमारे लिए जरूरी है। All right, we'll come to verse 5. He says, "For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh." 5वीं आयत में आपके लिए पढ़ूं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। And those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. और यहाँ लिखा है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो आत्मिक है, वो आत्मा की बातों पर अपने मन को लगाते हैं। Now, what it means to set your mind on the flesh and set your mind on the Spirit. शारीरिक बातों पर मन लगाना या शरीर की बातों पर मन लगाना और आत्मा की बातों पर मन लगाना, इन दोनों का अर्थ क्या है? It is from verse 4 that you understand what it means. 4वीं आयत में हम समझ सकते हैं कि शरीर और आत्मा की बातें क्या है। What does it mean to set your mind? मतलब मन लगाने का अर्थ क्या है, उसके 4वीं आयत में हमें समझ सकते हैं। Okay, in verse 4 he says, "In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but according to the Spirit." 4वीं आयत कहती है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। So here Paul is explaining that walking according to the flesh is what you mean by setting your minds. Both are almost the same weightage. और शरीर के अनुसार चलना मतलब मन लगाने की जो बात है, यहाँ पर दोनों पर मानो बराबर जोर दिया जा रहा है यहाँ पर पौलुस की भाषा में। All right, and very clearly when you try to compare what does it mean to walk in the context of the entire Old Testament, a Jew would understand this means conduct. How do you walk, or how do you relate this life in a practical sense? एक यहूदी व्यक्ति, पुराने नियम के संदर्भ में कहा जाए, एक यहूदी व्यक्ति जब इस भाषा को पढ़ेगा, जो चलने की भाषा है, शरीर के अनुसार चलना या आत्मा के अनुसार चलना, ये चलने की भाषा को वो समझेगा जो कार्य को दिखाते हैं, हमारा दैनिक जीवन में कार्य कैसा होना चाहिए। All right, a very clear example would be that of Noah, and Noah walked with God. और पुराने नियम में बहुत ही अच्छा एक उदाहरण हम देख सकते हैं, नूह का उदाहरण है। वहां लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। So what does it mean to be mindful of the things of the flesh? It just means simply to live a lifestyle of a flesh, or live the lifestyle of the Spirit. Living is what is considered. इसका मतलब मन लगाने की बात जब पौलुस कर रहा है, उसका अर्थ यही है कि कैसा जीवन या कैसा चाल चलन हमारा है, शरीर के अनुसार हमारा चाल चलन है या आत्मा के अनुसार हमारा चाल चलन है। Okay, so one more thing very quickly to make you understand when we read these portions, we quickly think, okay, now I am here and in me there are two ways. One is a spiritual way and one is a fleshly way. और उदाहरण के लिए एक और बात मैं आपको कहूं, हम जब यहाँ बैठे हैं, हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो शरीर का रास्ता है और एक आत्मा का रास्ता है। This is what we think. So in me there are two ways. हम ऐसा सोचते हैं या ऐसा समझते हैं कई बार कि हम मेरे अंदर ही दो मार्ग हैं, दो रास्ते हैं, शरीर का एक रास्ता और आत्मा का एक रास्ता। So our life is a constant wrestling or a fighting match. Every day you fight against the flesh, you fight against the spirit, fight against the flesh, fight against the spirit. This kind of lifestyle is what we have been trained to think about. और हम ऐसा समझते हैं कि हमारा जीवन जो है मानो एक संघर्ष है 24 घंटे आत्मा के बीच में और शरीर के बीच में, कि आत्मा के अनुसार जीऊं या शरीर के अनुसार जीऊं, ऐसा एक संघर्ष हमारे अंदर चलता रहता है। ऐसा हम इस आयत को समझते हैं। All right, but let me quickly remind you of one thing. What is Paul's end game here? What is he trying to make us understand?
लेकिन मैं आपको जल्दी में आपको संक्षिप्त में समझाऊं कि पौल अंत में क्या कहना चाहता है, सारांश में पौलुस क्या कह रहा है। Is Romans 8 talking about what we are to become or what we are? What is Paul trying to say? रोमियो 8 में पौलुस हमें क्या बनना है इस बात पर जोर दे रहा है, उसकी वहां पर व्याख्या कर रहा है, या हम क्या है उसकी व्याख्या वो वहां पर दे रहा है। If Paul was giving more force to what we ought to become, then our interpretation or our understanding that this fight is inside us is right. अगर हम ऐसे समझेंगे इस आयतों को कि पौलुस इस बात पर जोर दे रहा है कि हमें क्या बनना है भविष्य में, अगर उस बात पर हम जोर देंगे तो ये इसका जो तर्जुमा है वो सही है, ये समझना सही है कि यहाँ पर लिखा है कि शरीर और आत्मा के बीच में संघर्ष है, इस But- रीति से समझेंगे हम। But if you spend time in Romans chapter 8 and in the context of Romans 1 all the way through 16, you'll find out one thing. लेकिन आप रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसकी पृष्ठभूमि के तौर पर 1 से लेकर 16 तक आप पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी। More than what you ought to become, Paul is trying to emphasize the fact who you are. आप क्या बने या आप क्या बन रहे हैं, उससे ज्यादा पौलुस इस बात पर जोर दे रहा है कि आप कौन है, आपका स्थान और आपका पद क्या है। This is what Christ came to give you an understanding of who you are. मसीह इसलिए आया ताकि हमको ये समझा सके या हमें ये पहचान करा सके कि हम कौन हैं। Once you know who you are, that will save you from 99% of the problems. एक बार हम समझ जाएंगे कि हम कौन हैं तो हमारे 99% जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी। All right, let us read Romans chapter 8 verse 9. There you can see that Paul's conclusion or Paul's teaching is who we are. और जब उसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़ते हैं उसका सारांश हम देख सकते हैं कि हम मसीह में कौन हैं। Okay, verse 9, Romans chapter 8 verse 9. He says, "You, however, are not in the flesh but in the spirit." 8वीं आयत कहती है जो शारीरिक 9वीं आयत इस प्रकार कहती है, परंतु तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। So here Paul already concludes for the sake of the reader or the listener that you are in the spirit, not in the flesh. यहाँ पर पौलुस सारांश के तौर पर यह बता रहा है विश्वासियों को कि तुम शरीर में नहीं लेकिन तुम आत्मा में हो। So what is the conclusion of Romans? Romans is teaching us who we are and not who we ought to become. That's not the point. रोमियो की पत्री मानो हमको ये सिखाने का प्रयास कर रही है, ये नहीं कि हमें क्या बनना है या हम क्या बन रहे हैं, लेकिन हम कौन हैं इस बात पर रोमियो की पत्री जोर दे रही है। All right, and then once you understand, okay, Paul is trying to teach us who we are, the next thing, then why these verses? What do these verses mean? और एक बार हम इस बात को समझ ले कि रोमियो की पत्री हमें यह सिखा रही है कि हम कौन हैं, तो फिर इन आयतों का अर्थ क्या है अगर ऐसे संदर्भ में हम देखेंगे तो। Now then you can understand that Paul is trying to teach two kinds of people. That means Paul is teaching or giving an understanding of who is your master. और यहाँ पर पौलुस मानो इसके जरिए ये सिखाने का प्रयास कर रहा है कि आपका स्वामी कौन है। Is it the flesh or is it the spirit? क्या शरीर आपका स्वामी है या आत्मा आपका स्वामी है। All right, we will pick up because these themes are picked up from Romans chapter 8, Romans chapter 6. रोमियो की पत्री 6वें अध्याय में ये बातों को हम देख सकते हैं, ये जो मालिकाना हक की बातें हैं। Like I mentioned to you, there is so much more in this, but follow me, at least get the gist of it. The Lord will give you the understanding rest of the way. बहुत सारी बातें इसके अंदर कहने को है, लेकिन मेरे साथ साथ आप चले, थोड़ी बहुत बातें आज हम समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। Romans chapter 6 verse 10. रोमियो 6 के 10 में इस प्रकार लिखा है, For the death he died to sin once for all, but the life he lives to God. This is regarding Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार लिखा है 10वीं आयत में, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। Verse 11. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। Next verse. So you also must consider, verse 12. Let not sin therefore reign. The concept here is reigning of a king. Let it not reign in your members to sin. Let not therefore sin reign in your mortal body to make you obey its passions. 12वीं आयत, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। So here you start seeing the language of reigning, of obeying, all these things. Next also you'll see some things.
इसलिए यहाँ पर हम राज्य करने की बात और मालिक कौन है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम देखते हैं। आने वाले अध्याय में भी हम उस बात को देखते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर पौलुस करने लगा है। Verse 13 as well. Do not present your members to sin as instruments, as weapons. Some versions give it as weapons for unrighteousness, but to present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments or weapons for righteousness. 13वीं आयत कहती है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। Verse 14. For sin will have no dominion over you. 14वीं आयत कहती है, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। Verse 17. But thanks be to God that you were once slaves of sin, have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. 17वीं आयत, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। So here, why I read chapter 6? ये 6वीं अध्याय मैंने क्यों पढ़ा आपके लिए? Because once you are baptized into Christ, क्योंकि एक बार जब आपका मसीह में जब बपतिस्मा हो जाता है, He has become your owner. He owns you, rules you. वो आपका स्वामी बन जाता है, आपके ऊपर प्रभुता वो करता है। No one has the authority over you, only the Lord Jesus Christ. और किसी के पास वो अधिकार नहीं आप पर प्रभुता करने का, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। And this ownership language is what is carried forward in Romans chapter 8. और ये जो मालिकाना हक की जो बातें हैं, जो भाषा है, वो 8वें अध्याय में हमें देखने को मिलती है। Where Paul says in Romans chapter 8, now we will come to, he says in verse 5, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. क्योंकि 5वीं आयत इस प्रकार कहती है 8वें अध्याय में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। So what you should go away from is, Lord, I'm in this constant battle day and night, day and night. Jesus Christ came to free you from the battle of sin. और ये है बात कि हम लगातार पाप के साथ एक युद्ध में लगे हुए हैं, दिनों रात, और यीशु मसीह हमको इस युद्ध में विजय दिलाने के लिए यीशु मसीह आया। All right, Hebrews also takes that same theme when you read Hebrews chapter 12. इब्रानियों की पत्री में भी हमें यही बात देखने को मिलती है। Okay, Hebrews chapter 12 verse 3. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. इब्रानी 12:3 इस प्रकार कहती है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। Verse 4. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. 4वीं आयत, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे इस ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। Whose blood was shed in the struggle for sin? पाप से संघर्ष करते हुए किसने अपना लहू बहा दिया? Jesus Christ. यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। You don't need to shed your blood for sin again. हमें उस पाप के लिए फिर से लहू बहाने की आवश्यकता नहीं है। How do you save yourself from sin? आप कैसे अपने आप को पाप से बचाएंगे? How do you deliver yourself from death? आप मृत्यु से अपने आप को कैसे छुड़ाएंगे? By choosing a new master. एक नए स्वामी को कबूल करते हुए, एक नए स्वामी को अपने ऊपर हक देते हुए। But how can you choose a new master? लेकिन आप एक नए स्वामी को कैसे चुनेंगे? That's what Romans chapter 7 is all about. रोमियो 7वें अध्याय में यही बात हमें देखने को मिलती है। Paul says that in my members there is another member of sin fighting against me. पौलुस कह रहा है कि मेरे शरीर के अंदर एक और स्वभाव है, पाप का स्वभाव, जो मुझसे लगातार युद्ध और संघर्ष करता रहता है। Who will save me from this big battle and fight? ये बड़े युद्ध से, बड़े संघर्ष से मुझे कौन जय दिलाएगा? And that's what Romans chapter 7 verse 24 and 25 says. Romans 7 verse 24. रोमी 7:24 और 25 में इस प्रकार पौलुस कहता है। Romans 7:24. रोमी 7:24, Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? Verse 24, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. 25वीं आयत, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं,
निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। Let me speak to the believers now. अभी मैं विश्वासियों से ये बात कह रहा हूं। Believers, if your Lord is Jesus Christ, अगर आपका प्रभु यीशु मसीह है, your duty is not to keep on fighting and struggling and fighting and struggling. This member is not in you. The Bible clearly says that you are saved. You are removed from that body completely. और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हमने यीशु मसीह को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया, हमें इस संघर्ष में बने रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्वभाव हमारे अंदर से निकाल दिया गया है। How is that removed? कैसे ये स्वभाव निकाल दिया गया है? Through the baptism into Christ. यीशु मसीह में जब हमारा बपतिस्मा हुआ तब। His death is your death. यीशु मसीह की मृत्यु हमारी मृत्यु है। His burial is your burial. उसका गाड़ा जाना हमारा गाड़ा जाना है। His resurrection has been reckoned to you by grace as resurrection. और उसका जो पुनरुत्थान है वो हमारे ऊपर भी उसकी छाप लगाई गई है पवित्र आत्मा के जरिए। And this power is the one that keeps you from sin and from death and from everything else in the world. और यही वो सामर्थ है जो हमें पाप से बचाए रखती है, मृत्यु से बचाए रखती है, संसार में जो है उन सब बातों से ये सामर्थ हमें बचा कर रखती है। You should know who your owner is. हमें ये समझना और जानना जरूरी है कि हमारा स्वामी कौन है, Who rules you? कौन हम पर प्रभुता करता है, Who reigns over you? कौन हम पर राज्य करता है। This should be inside your body completely. That is why you have pastors, leaders, and teachers to teach you and tell you who owns you. और इसलिए हमारे पासबान लोग और शिक्षक लोग हमें सिखाते हैं कि कौन हम पर प्रभुता करता है, कौन हम पर राज्य करता है। I would like to read Romans chapter 6. और वापस मैं रोमियो की पत्री 6वें अध्याय की ओर आना चाहता हूं। Romans chapter 6 verse, it's an amazing the whole book is amazing, but because of the lack of time, let's quickly jump to verse 4 onwards. और समय पूरी पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, लेकिन मैं 5वीं आयत से 6वें अध्याय की 5वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। Okay, let's read from verse 4 onwards, please. 4वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। We are buried therefore with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk. You see, again, Romans chapter 8, walk in the newness of life. चौथी आयत इस प्रकार कहती है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। फिर से वो चाल की बात यहाँ पर है। Verse 5, for if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. 5वीं आयत कहती है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। All right, verse 6, we know, this is a verse which you should keep in mind. We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. और इसलिए 6वीं आयत कहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। Okay, let's quickly refresh what we just learned just from 5 to 8 very quickly. संक्षिप्त में हम जल्दी देखें 5 से लेकर 8वीं आयत तक हमने क्या देखा। Romans chapter 8 is not trying to teach us what we are to become, but Romans chapter 8 is trying to teach us who we are. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय हमें यह सिखाने का प्रयास नहीं कर रही कि हम के क्या करना है, लेकिन यह सिखा रही है कि हम कौन हैं। Okay, it is telling you that you are people of the Spirit. हमें यह सिखा रही है कि हम आत्मा के लोग हैं, आत्मा की प्रजा है। Simply by waking up one day, you cannot be people of the Spirit. एक दिन अचानक हम उठ गए और सुबह हम आत्मा के लोग बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। You have to be identified with Jesus Christ. हमारी पहचान यीशु मसीह की पहचान के साथ जुड़ जानी चाहिए। You must die with him. हमें यीशु मसीह के साथ मरना जरूरी है। You must be buried with him. यीशु मसीह के गाड़े जाने में सहभागी होना जरूरी है। And you must be identified with his resurrection. और उसके पुनरुत्थान में भी सहभागी होना हमारे लिए जरूरी है। Praise the Lord. हालेलुया। And how does this thing happen? ये कैसे होता है? ये जो प्रक्रिया है, ये जो बातें हैं, That is what we read in Romans chapter 1 verse 16. He says, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes.
और इसलिए रोमियों की पत्री पहले अध्याय में उन बातों को देखते हैं जो कहता है कि अब मैं सुसमाचार के कारण लजाता नहीं, क्योंकि जो छुड़ाए गए हैं उनके लिए वो सामर्थ का विषय है, सामर्थ का कारण है, ऐसा पौलुस कहता है। So Romans 8 is teaching us who is our master. तो रोमियो की पत्री 8वां अध्याय ये सिखाती है कि हमारा स्वामी कौन है। Okay, the next very important thing is, even though the Spirit is your master, the Lord is your master, even though He's your master, you can live like the world because you are given the freedom to choose between the Lord or not. लेकिन आगे उसी अध्याय में लिखा है कि हमारा स्वामी परमेश्वर यीशु मसीह है, लेकिन फिर भी हमें यह आजादी दी गई है कि हम जैसा चाहे वैसा अपना जीवन बिता सकते हैं। वो आजादी हमें चुनने की दी गई है। That's why you need to walk according to the Spirit. और इसलिए हमें आत्मा के अनुसार चलना है। Okay, so what is the lifestyle? Who are the people who are of the flesh? Who are the people of the Spirit? और इसलिए कौन है जो शरीर के आधार पर जीवन बिताते हैं और जो कौन है आत्मा के अनुसार जो चलते हैं। So it is not the struggle in me. I am sold out to the Lord. Those who are identified with Christ are not fighting inside. They are already the Lord's. They are a different set of people. Now they have to live there to stay away from the way or walk of the flesh. और इसलिए जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना स्वामी मान लिया है, वो ये लोग नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पूरा पूरा यीशु मसीह के अधीन अपने आप को कर दिया है। वो लोग के अंदर ये संघर्ष अभी नहीं जो पाप और आत्मा के बीच में, वो पूरा पूरा परमेश्वर यीशु मसीह के अधीन है और वे आत्मा के अनुसार अभी अपना जीवन बिताते हैं। All right, so those who are living in the flesh, now what you are sensitive to the people of the flesh. Those who are in the Spirit, you're sensitive to the people of the flesh. और इसलिए जो अभी आत्मा में अपना जीवन बिता रहे हैं, वो संवेदनशील रहते हैं उन लोगों के प्रति जो शरीर में अपना जीवन बिता रहे हैं। All right, and that's why Paul, before explaining the power of the gospel, he explains very clearly who are the people of the flesh in Romans chapter 1 and 2. और इसलिए रोमियो की पत्री पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में पौलुस बहुत ही सीधी रीति I think there's been a internet issue there with Philip or Blesson. Blesson, you're back? Yeah, my There internet is- got disconnected for a I minute. know, no worries. Yeah. So, and we were saying Romans chapter, that's the reason Paul is explaining in Romans chapter 1 and 2 before he can lay down the principle of faith in Romans chapter 4. He lays down, listen, brothers, there is a life of the flesh which you need to stay away from. And the only way you can be away from that is by faith in Jesus Christ. कि शरीर का जीवन कैसा है वो सीधे सीधे स्पष्ट रीति से समझाने का प्रयास करता है कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं उनका जीवन कैसा होता है, ताकि हम विश्वास में होकर आगे बढ़ सके, विश्वास में हमारा जीवन आगे चलता जाए। All right, very quickly, Romans chapter 1, we can read the lifestyle of the flesh, which we as Christians are changed from, removed from. So praise be to Jesus Christ. और इसलिए पहले अध्याय में हम शरीर की उस जीवन शैली को देखते हैं जिससे यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है और हमें बचाया है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Very, very quickly, only the last portion because of the lack of time. Romans chapter 1, verse 29 all the way till 32. इसलिए रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय उसकी आखिरी वचनों की और हम आएंगे उस अध्याय की जहां पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि शरीर के अनुसार चलते उनका जीवन कैसा होता है। Romans chapter 1, verse 29 to 32. पहले अध्याय की 29 से लेकर 32वीं आयत तक। Verse 29 says, they were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips. 29वीं आयत कहती है वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए हैं और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। All right, verse 30, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents. और 30वीं आयत बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। Verse 31, foolish, faithless, heartless, ruthless. 31वीं आयत निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए हैं।
Verse 32, though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them but give approval to those who practice them. 32वीं आयत में लिखा है, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल अपने ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। All right, so here let me now be very careful because we are going to tread on some more ground here. I would request you to follow me very carefully. और इसलिए ध्यान से अब इन वचनों को आप सुने, क्योंकि हम बहुत सारी बातें यहाँ देखने वाले हैं एक साथ। Paul very clearly says that what he's trying to teach is not, brothers, there is some fight in you, but he's saying that you are sold out to Christ and those who are not sold out to Christ. पौलुस यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, ये नहीं बता रहा है। पौलुस ये कह रहा है कि हम पूरी रीति से यीशु मसीह के लिए बिक चुके हैं, हमारा स्वामी पूरी रीति से यीशु मसीह है, ये बात पौलुस यहाँ पर कह रहा है। And then Paul says that if you live according to the Spirit, you will not fulfill the lust of the flesh. That means if you are sold out to the Spirit, if He is your Lord, these things of the flesh will stay away from you. Can you repeat that again? I missed that actually. Yeah, he says that once you are sold out to the Spirit is your leader, guide, king, ruler, then all these works of the flesh will not have any effect on you or will not attack you. और पौलुस ये कह रहा है कि एक बार आप पवित्र आत्मा के हाथों बिक चुके हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वामी है, तो आपके ऊपर इन सब बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो जो बातें लिखी है, इन चीजों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहता है। On whom will these fleshly activities not attack? फिर ये किन लोगों पर इसका अधिकार या इनका हक नहीं है, ये शारीरिक बातों का? Those who are waiting eagerly for a resurrected body. जो पुनरुत्थित जीवन का जो उसके इंतजार में जो लगे हुए लोग हैं, उन पर इन बातों का, इन शरीर की बातों का कोई हक नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। If your aim is to live in the Spirit and then just die, the world of the flesh will attack you. अगर हमारी उम्मीद यह है कि आत्मा के अनुसार चल तो रहे हैं, लेकिन फिर यही जीवन खत्म हो जाए, फिर आगे कुछ नहीं, तो फिर जो शरीर की बातें हैं वो हम पर हमला करने का प्रयास करेगी। You understand, most of the people, why they would, when they say Romans chapter 8, they say, live in the flesh, don't live in the flesh, live in the Spirit, and that's it. It stays at that area or that realm. और अधिकतर लोग जब रोमियो 8वें अध्याय की बात करते हैं तो बोलते हैं कि शरीर के अनुसार मत चलो, आत्मा के अनुसार चलो, बस इतना कहकर वे छोड़ देते हैं। But why do you live in the Spirit? That's the question. लेकिन क्यों आत्मा के अनुसार चलना है, सवाल वो है। Not to get a conduct certificate from your school. स्कूल से हमें एक सर्टिफिकेट मिले कि इसका चरित्र बहुत अच्छा है, ऐसा सर्टिफिकेट पाने के लिए नहीं। You're living in the Spirit not to get a conduct certificate from your pastor. हमारे पासबान से एक सर्टिफिकेट मिले, इसके लिए भी हम ऐसा जीवन नहीं बिता रहे कि पासबान बोले कि इस व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा है। Oh, look at this son, he's very good, he doesn't do anything wrong, such a nice boy. This is not why you're living in the Spirit. अरे इस बेटे को देखो, ये बेटे का जीवन बहुत अच्छा है, ये कोई भी गलत काम नहीं करता है, ऐसा सर्टिफिकेट पाने के लिए हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, ऐसा नहीं है। Some people say that you should live right or live according to the word of God because in the future if marriage comes it will be a problem. For marriage they live good. What nonsense. कई लोग बोलते हैं कि आत्मा के अनुसार चलो, वचन के अनुसार चलो, क्योंकि भविष्य में अच्छा रिश्ता मिलना चाहिए, अगर अच्छे से नहीं रहोगे तो रिश्ता अच्छा नहीं आएगा। ये सब बेवकूफी की बातें हैं, क्योंकि शादी करने के लिए हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। Walking in the Spirit is not for people to give you a good man certificate. आत्मा के आधार पर, आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना, कोई हमें सर्टिफिकेट दे कि ये व्यक्ति अच्छा है, उस सर्टिफिकेट के लिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। But walking in the Spirit is to be put on by the heavenly body that Christ will give when He comes or when He appears. लेकिन आत्मा के अनुसार हमें इसलिए चलना है ताकि वो पुनरुत्थान का जो शरीर हमें यीशु मसीह देगा, परमेश्वर देगा भविष्य में, वो पाने के लिए हमको आत्मा के अनुसार जीवन बिताना है। If your body needs to be transformed, if your body needs to be resurrected, you need to walk in the Spirit because those who have the Spirit of the Lord, they are His. क्यों? अगर ये शरीर रूपांतरित होकर अगर उस महिमान में शरीर को हमें पाना है, तो उसे पाने के लिए हमें आत्मा के अनुसार अभी चलना पड़ेगा, क्योंकि जिसके अंदर आत्मा है वो यीशु मसीह के हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Living right is only a byproduct of walking in the Spirit. सही रीति से जो चाल चलन है वो आत्मा में चलने का नतीजा है। That's all. That is not the main point. The reason why we are walking in the Spirit is so that we can be transformed to His glorious body. और आत्मा में हम इसलिए चलते हैं, हमारा कार्य अच्छा हो जाए, हमारा
चलने का तरीका सब अच्छा हो जाए सिर्फ इसलिए नहीं, लेकिन वो महिमान्वित शरीर हमें मिल जाए पुनरुत्थान का, इसलिए हम आत्मा के चलाए चलते हैं। We are waiting to meet our Savior who died for us. हम हमारे उद्धारकर्ता से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो उद्धारकर्ता जिसने अपनी जान की कुर्बानी हमारे लिए दी है। This excitement makes us say no to the flesh, no to sin, and live in righteousness. और हमारे उद्धारकर्ता से मिलने की जो उत्सुकता है, उस उत्सुकता के कारण हम कहते हैं शरीर के कामों को ना बोलते हैं और आत्मा के कार्यों को हम हाँ बोलते हैं। Praise the Lord. 1 Thessalonians Hallelujah. chapter 5. पहला थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है। Verse, again, context is very so much, but I'm just reading 2 verses for your learning. Verse 22 and 23. पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय उसकी 22 और 23वीं आयत में इस प्रकार लिखा है। Verse 22, abstain from every form of evil. सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। Why? क्यों उससे बचे रहना है? Verse 23, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. 23वीं आयत में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। What does it mean to be kept blameless at his coming? निर्दोष, उसके आने तक निर्दोष रहने का अर्थ क्या है? For transforming your mortal body into his glorious body. इसका अर्थ यही है कि जो हमारा विनाशकारी जो देह है, विनाशपूर्ण जो देह है, वो अविनाशी देह में रूपांतरित हो जाए, यही उसकी इच्छा है, यही उसका उद्देश्य है। And surprisingly and very interesting is that Romans chapter 8 verses 5 to 8, if you read further, Paul again brings the topic of resurrection. और बहुत ही रुचि वाली बात यह है कि जब रोमियो के पत्री 8वें अध्याय उसकी 5 से लेकर 8वीं आयत तक हम पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस भी वापस इसी बात को, इस पुनरुत्थान की बात को वहां पर लेकर आता है। Okay, Romans chapter 8 verse 18. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसके 18वीं आयत में हम देख सकते हैं। For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed in us. क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। Verse 19, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। Who are the sons of God? ये कौन है जो परमेश्वर के पुत्र हैं? Those who cry out, Abba, Father, those who have his spirit of adoption. जिसके अंदर वो परमेश्वर की आत्मा है, जिसके अंदर वो लेपालकपन की आत्मा है, और जो परमेश्वर पिता को अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। Those whose master is the Lord Jesus Christ. जिनका स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। And they're not living to get a good conduct certificate, but they're living to transform and see the Lord face to face. और वे अच्छे चरित्र का सर्टिफिकेट पाने के लिए ऐसा जीवन नहीं बिताते हैं, वे अच्छा जीवन इसलिए बिताते हैं ताकि अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने वे देख सके। I would request you to read Romans chapter 8 verse 19, and then we'll go to one more verse for comparative study. और रोमियो की पत्री 8वें अध्याय 19वीं आयत को हम एक और बार देखेंगे और एक और आयत को उसके बाद समझने के लिए हम देखेंगे। Verse 19 says, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. 8 के 19 में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। And I told you, sons of God are not people who are trying to live right so that they can get a certificate, but those who have his spirit and those who are owned by the Lord Jesus Christ. और ये परमेश्वर के जो पुत्र है, वो नहीं जो सही कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, कार्यों में लिप्त है, लेकिन वो है जिनका स्थान और पद ये है कि वो अभी यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में वे सुरक्षित है। 1 John chapter 3 verse 2. पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसकी 2री आयत में इस प्रकार लिखा है, Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared, but we know that when he appears, we shall be like him, because we shall see him as he is. वहां इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। So a quick comparative study of 1 John chapter 3 and Romans chapter 8. Why are you the son of God?
और अगर पहला यूहन्ना उसके इस आयत को हम देखते हैं, तीसरे अध्याय को और 8वें अध्याय रोमियो की जब हम देखते हैं, तो हम क्यों परमेश्वर के पुत्र है, पुत्रियां हैं, ये सवाल अगर हमसे पूछा जाए, For the sake of resurrection, for उस the sake of पुनरुत्थान transformation. उस पुनरुत्थान के लिए, उस रूपांतरण के लिए हमें पुत्र और पुत्रियां ठहराया गया है। Praise the Lord. Let's read one more verse from Philippians chapter 3. फिलिपियों की पत्री उसके तीसरे अध्याय से भी हम एक आयत को पढ़ेंगे। Philippians chapter 3. We know these verses, but the beauty is that you have to connect and understand the theology behind these verses. इन आयतों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आयतों की जो पृष्ठभूमि है, उनके पीछे की जो शिक्षा है, उसको समझना जरूरी है। All right, Philippians chapter 3, verse 8. तीसरे अध्याय की 8वीं आयत इस प्रकार कहती है, We read, Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I might gain Christ. 8वीं आयत कहती है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। For the lack of time, verse 10, that I may know him and the power of his resurrection, and that I may share in his sufferings, becoming like him in his death. 10वीं आयत कहती है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। You understand? So the point is, whenever you read the Son of God, and when you read portions like walk in the Spirit, it is not for a good life. It's not for a nice life. It is for resurrection. So have a bigger vision. Have a theological, expanded vision of what God really expects out of his people. और इसीलिए जब हम बार बार ये सुनते हैं परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां और परमेश्वर में जो हमारा स्थान है, इन बातों पर जब जोर दिया जाता है, ये सिर्फ एक भले जीवन के लिए, संसार में अच्छा जीवन हो, सिर्फ उस बात के लिए नहीं, लेकिन पुनरुत्थान के लिए और एक रूपांतरण के लिए वो बातें कही गई है, ये समझना हमें जरूरी है। I pray that the Holy Spirit will open your eyes. और मेरी प्रार्थना ये है कि पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोले। Okay, now we'll come back to Romans chapter 8 and very quickly wind up our message for today. और इसलिए वापस हम रोमियो की पत्री 8वें अध्याय की ओर आएंगे और इस संदेश को हम समझने का प्रयास करेंगे सारांश में। Verse 20 we are following now. 20वीं आयत की ओर हम आते हैं। For the creation was subject to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope. 20वीं आयत कहती है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। Verse 21, that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. और 21वीं आयत की सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानियों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। What is the glory of the children of God? The resurrection. परमेश्वर के संतानों की महिमा क्या है? वो पुनरुत्थान परमेश्वर के संतानों की महिमा है। And how do you know what is the proof that resurrection will work in us? और वो पुनरुत्थान हमें कार्यान्वित है, उस बात को समझने का, उस बात को जानने का सबूत क्या है? Because 2000 years he got out from the grave and said, I am that I am resurrected and no more going to die. Jesus Christ's resurrection is the proof of our resurrection. 2000 साल पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और उसने कहा कि अब मृत्यु ना रहेगी, और उसका पुनरुत्थान हमारे लिए सबूत है प्रभु यीशु मसीह का कि अब हमारा भी भविष्य में पुनरुत्थान होने वाला है। Verse 22, for we know that the whole creation has been groaning together in pains of childbirth until now. और 22वीं आयत इसलिए कहती है क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। Verse 23 is very clear, and not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for the adoption as sons, the redemption of our bodies. और 23वीं आयत इस प्रकार कहती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। The redemption of our bodies is explained also by Paul in Philippians chapter 3 verse 21. और जो हमारे देह के छुटकारे की बात है, ये फिलिपियों की पत्री 3 के 21 में भी पौलुस कहता है। Who will transform, Philippians 3 verse 21, who will transform our lowly body to be like his glorious body by the power that enables him even to subject all things to himself. फिलिपियों 3 के 21 में इस प्रकार लिखा है, वो अपने शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा।
All right, coming back to Romans chapter 8, verse 23. रोमियो 8 के 23 में हम लौट कर आए। 23 we read, verse 24. 24वीं आयत की ओर हम आए। For in this hope we are saved. Now hope that is seen is not hope, for who hopes for what he sees? आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। Verse 25, but if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. परंतु 25वीं आयत कहती है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। What are we waiting with patience? The resurrection, to be presented with the glorious body along with Jesus Christ. हम किस बात की बाट जो रहे हैं? उस पुनरुत्थान की बाट जो रहे हैं, यीशु मसीह के समान उस रूपांतरित महिमान्वित शरीर की हम बाट जो रहे हैं। Okay, the next few verses we'll read and we'll conclude. Verse 26. Likewise, the Spirit helps us in our weaknesses, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep that words cannot express. 26वीं आयत इस प्रकार कहती है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। Most of us would misunderstand this verse in terms of prayer. हमें से अधिकतर लोग इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर प्रार्थना की बात की जा रही है। Here, prayer is not for your personal family business. यहाँ पर हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यक्तिगत बातों के लिए प्रार्थना का विषय यहाँ पर नहीं है। Not for your personal healing. हमारे व्यक्तिगत चंगाई की बात यहाँ पर नहीं की गई Not है। for your personal children. हमारे बच्चों के लिए चंगाई की या बच्चों की किसी बात के लिए प्रार्थना करने की बात नहीं है। But here, prayer is connected with resurrection. लेकिन यहाँ पर जो प्रार्थना है वो पुनरुत्थान से जुड़ी हुई बात है। What Paul says is we are living in a mortal body. पौलुस ये कह रहा है कि हम मानो इस शरीर में जो रहते हैं, ये शरीर विनाशकारी शरीर है, इसका अंत हो जाएगा किसी ना किसी दिन। But we are lauded by a spiritual person, that is the Lord Jesus Christ. लेकिन हमारा जो प्रभुत्व करने वाला है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। This imbalance which in our minds we think is like an imbalance ruled by the resurrected Savior living in a mortal body, Paul says now you do not know how to pray for this fight inside. और हमारे अंदर हम जो शरीर में रहते हैं ये तात्कालीन जो शरीर है, लेकिन हमारे अंदर प्रभुत्व यीशु मसीह का है, और ये जो संघर्ष है कि हम कैसे प्रार्थना करें, इस बात को जोड़ते हुए ये हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। In 2 Corinthians, Paul calls it the power in earthen vessels. और दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है कि ये जो सामर्थ्य है ये मिट्टी के बर्तनों में दिया गया है, ऐसे उस बात को प्रस्तुत करता है। And Paul says, how do you pray then when you are in this earthen vessel but filled with the Spirit of God? How do you pray? और पौलुस ये कहता है कि जब हम मिट्टी के पात्र हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन इसके अंदर ये सामर्थ दिया गया है, तो हम कैसे प्रार्थना करें? That's where the Holy Spirit, the Bible says, when you pray, the Holy Spirit prays for you, knowing that God's mind is your resurrection, your glorification. और इसी बात को पौलुस वहां पर कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे साथ प्रार्थना करता है उस पुनरुत्थान के लिए, उस महिमान्वित रूपांतरण के लिए। All right, so prayer here is connected with resurrection. इसलिए यहाँ पर जो प्रार्थना की बात है वो पुनरुत्थान से जुड़ी हुई है। All right, verse 26. Likewise, the Spirit Himself helps in our weaknesses, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. इसलिए 26वीं आयत कहती है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। Verse 27. And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. और इसलिए 27वीं आयत, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। Verse 28. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. इसलिए 28वीं आयत कहती है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। This all things working together for good is not an immediate good in your job and in your finances, in every situation of life, but this good is an eschatological good. That means the resurrection is yours. That is the good that Christ has come to give you.
और इसलिए यहाँ पर जो भली बात या भलाई की बात पौलुस कर रहा है, ये सिर्फ हमारे नौकरी में अभी तत्कालीन कुछ आशीष हो जाए या कुछ हमारे लिए छुटकारा हो जाए, उस भलाई की बात नहीं कर रहा है। तत्कालीन कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य की बात पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि भविष्य में जो रूपांतरण और पुनरुत्थान हमारे लिए रखा गया है, उसके जरिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करेगी, ये बात पौलुस कह रहा है। If you remember, in verse 18, Paul says, what is the now? और उसके अगर 8वें आयत आप देखेंगे, आप समझ सकते हैं, वहां पौलुस कह रहा है कि अभी क्या हो रहा है। For I consider that the suffering of this present time is not worth comparing with the glory that is to be revealed in us. वहां पौलुस कहता है कि अब अभी हमारा जो तत्कालीन जो दुख और तकलीफ से हम झेल रहे हैं, वो आने वाली महिमा से हम जब तुलना करें तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। And this suffering is not something which you fall into because of your foolishness, but this suffering is for the sake of the Lord Jesus Christ. और इसलिए ये जो दुख उठाना है, ये हम इसमें जानबूझकर गिर गए या हमारी मूर्खता से गिर गए, ऐसा नहीं, लेकिन ये यीशु मसीह के खातिर ये दुख उठाना है। Because he lords over you, you are suffering in this world. क्योंकि वो हम पर प्रभुता करता है और इसलिए हम दुख भी उठाते हैं इस संसार में। Because we do not have the spirit of the world. क्योंकि हमारे अंदर संसार की आत्मा नहीं है, We have the spirit of Christ. हमारे अंदर मसीह की आत्मा है। All right, let me quickly conclude right now what all we learned. और जल्दी मैं संक्षिप्त में कहूं आपके सामने यहाँ पर Romans chapter 8 talks about walking in the spirit and walking in the flesh. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय आत्मा में चलने और मसीह में चलने की बात को, आत्मा में चलने और शरीर में चलने की बात को रखता है। These two, walking in the spirit and walking in the flesh, Paul says, is not something that's happening inside me, but he's talking about two different people groups. और आत्मा में चलना और शरीर में चलना ये मेरे अंदर नहीं हो रहा है। पौलुस दो अलग अलग झुंडों की बात यहाँ पर कर रहा है। What was happening in Paul was clearly laid out in chapter 7, and Paul says, who will save me from this inside fight? He says, Jesus Christ. पौलुस के अंदर जो संघर्ष चल रहा है, पौलुस 7वें अध्याय में स्पष्ट रीति से वो कहता है और अंत में कहता है कि कौन मुझे इससे छुड़ाएगा, और वो कहता है उसका उत्तर सिर्फ यीशु मसीह मुझे छुड़ा सकता है। So Jesus Christ saved you from this internal battle and separated you as a slave to righteousness. और यीशु मसीह ने हमको ये जो आंतरिक संघर्ष हमारे अंदर चल रहा है, उससे हमें छुड़ाया और हमें धार्मिकता के गुलाम हमको बना दिया है। So now we are living by the law of Christ, living by the entire scriptures. और इसलिए अब हम यीशु मसीह की आज्ञा के आधार पर चलते हैं, वचन के आधार पर हम चलते हैं। But why are you living according to the Spirit? लेकिन क्यों हम आत्मा के अनुसार चलते हैं? Not to get a good conduct certificate. एक अच्छा चरित्र का सर्टिफिकेट हमें मिले इसलिए नहीं। You're living in the Spirit for the sake of transforming this mortal body into His glorious body. हम आत्मा के अनुसार इसलिए चलते हैं ताकि जो ये मरणहार शरीर हमारा है, वो रूपांतरित एक पुनरुत्थान शरीर को प्राप्त करे, इसलिए हम आत्मा के चलाए चलते हैं। And the only way you can be transformed, the only way you can be resurrected, if His Spirit, the Lord's Spirit, resides in you. और ये तभी हो सकता है, वो पुनरुत्थान का जीवन, वो रूपांतरित जीवन हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसेगा। We are the temple of the Holy Spirit. क्योंकि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। We are the temple of God. हम परमेश्वर के मंदिर हैं। Praise the Lord. I believe that God has blessed you with these scriptures. Of course, time is less to explain the beauties of the kingdom, but I hope you have received at least something to live, to learn, and may the Lord bless you abundantly. और मेरा विश्वास है, समय बहुत कम था, लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के वचन से सिखाया है, समझाया है, और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि उसके वचन के आधार पर हमारे जीवन को हम चला सके, हमारे जीवन को हम आगे बढ़ा सके। Once again, I'd like to thank Philippos, Pastor, for the time, and especially those who have heard me. I request that you all pray sincerely. Let the Holy Spirit touch your hearts and your lives.